morning to all my dear friends. It has been a long gap of almost 45 days since we have recorded and released our last video lecture. And during this 45 days, there has been a lot of things that has happened. There has been certain GST Council meetings. There has been the effect of demonetization. And over and above that, on 26th of November 2016, the revised model GST law was kept in the public domain by CBEC. So now, after 26th November 2016, I have been receiving a lot of calls and all are asking me to come out with the fresh video lectures in which I should deal with the provisions in the model GST law. Now what I have decided is we'll be starting altogether a new series which will be known as Revised Model GST Law Knowledge Series, and slowly and gradually in the sessions to come we'll be discussing on each and every relevant provision of Revised Model GST Law. तो सब ये सीरीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो फर्स्ट सेशन है इस सीरीज का रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ पे, उस सेशन में एटलीस्ट हम जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ में वो डिस्कस करें. एंड देन इन द सीरीज और सेशंस टू कम विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस in detail. So this particular session will be an overview of revised model GST law. We'll be touching upon certain aspects and then we will be comparing on certain aspects of old model GST law which was issued on 14th of June 2016 and the revised model GST law which was issued on 26th of November 2016. Now let us proceed towards the discussion of this session, which as discussed will be an overview and a comparative view of old model GST law and the revised model GST law. तो सर सबसे पहले कंपोजिशन की बात करें तो ओल्ड मॉडल जीएसटी लॉ जो 14 जून 2016 को पब्लिक डोमेन में आया, उसके अंदर टोटल 162 सेक्शंस थे, 25 चैप्टर्स थे और 4 शेड्यूल्स थे और एक वैल्यूएशन रूल था. और रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ के अंदर ये कंपोजिशन कुछ इस तरीके से हुआ कि जो सेक्शंस थे वो 197 हो गए, चैप्टर्स 27 हो गए, शेड्यूल्स जो है वो 5 हो गए और जो वैल्यूएशन रूल था वो ओमिट हो गया. सो इट मीन्स 162 सेक्शन से 197 सेक्शंस, 25 चैप्टर से 27 चैप्टर्स, 4 शेड्यूल से 5 शेड्यूल और एक जो वैल्यूएशन रूल ओरिजिनल मॉडल जीएसटी लॉ में था वो हटा के उन्होंने उसको ओमिट कर दिया है. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट अ न्यू वैल्यूएशन रूल विल कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस वाज ऑल अबाउट शेड्यूल्स एंड द कंपोजिशन. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ऑन some of the important sections which have been inserted or which have been modified in the revised model GST law. But before moving towards that, let us understand what were the 4 schedules earlier and what are the 5 schedules now. तो जो पहले 5 में से 4 शेड्यूल थे ओरिजिनल मॉडल जीएसटी लॉ में, जो पहले 4 शेड्यूल्स थे उसमें पहला शेड्यूल था ऐसे मैटर्स which are to be treated as supply even without consideration. The matters to be treated as supply even without consideration. Second जो शेड्यूल था, it was giving a classification of what is going to be treated as supply of goods and what is going to be treated as supply of service. Schedule 3 जो पहले था, it was liability to get registered. The persons who are doing any transactions or doing any business, in what circumstance or crossing what turnover limits they will have to get themselves registered. It means उनकी liability कब arise होती है वो शेड्यूल 3 में था. और शेड्यूल 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए
कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा या विच विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई. These were the 4 schedules earlier. And now what about the 5 schedules in the revised model GST law? पहला schedule same है, that is matter to be treated as supply without consideration. Schedule 2 again it is same, classification as to what is to be treated as supply of goods and what is to be treated as supply of service. Schedule 3 it has been changed. Now in revised model GST law, schedule 3 is something which is not to be treated as supply of goods, not to be treated as supply of service. It means what? It is a negative list. Schedule 4, it is same as earlier. That means the transactions of central government or state government which is not to be regarded as supply, तो वो taxable नहीं होंगी. And schedule 5 जो liability to get registered पहले schedule 3 था, now that has been shifted to schedule 5. So this is a broad composition of revised model GST law. Now let us move to some of the important definitions which have undergone some changes or which have been inserted in the revised model GST law. तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आता है important definition, it is aggregate turnover. Aggregate turnover original model GST law में अगर हम सोचें तो it was something that includes taxable supply, non-taxable supply, exempted supply and export. ये चारों चीजों को मर्ज करके जो टर्नओवर होगा दैट विल बी रिगार्डेड एज एग्रीगेट टर्नओवर. नए मॉडल जीएसटी लॉ में इसमें केवल एक टर्मिनोलॉजी, एक टर्म निकाल दिया है और बाकी डेफिनेशन सेम है. व्हाट इज दैट टर्म? दैट टर्म इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई. इट मीन्स नाउ द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इज टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सप्लाई. ठीक है, तो ये एक चेंज आया कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो है इट हैज बीन नाउ ओमिटेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन इज मोर और लेस सेम. नाउ मूविंग फर्दर, देयर हैज बीन अनदर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स. तो अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गुड्स का जो रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ से पहले यानी ओरिजिनल मॉडल लॉ में जो डेफिनेशन था, इट वाज सेम एज इट वाज डिफाइंड इन सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004. But now in revised model GST law, I would say that I personally feel that the scope has been widened up. काफी स्कोप को बढ़ा दिया है कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन को, and now it has been defined as anything that is recorded in the books of account as capital goods. I am repeating, anything that is recorded in the books of accounts as capital goods. So that will be treated as capital goods. तो पहले जो सेनवेट क्रेडिट रूल्स में जो डेफिनेशन दी हुई है कैपिटल गुड्स की वो डेफिनेशन थी, बट नाउ दैट डेफिनेशन हैज बीन चेंज्ड एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस डेफिनेशन व्हिच सेज दैट एनीथिंग दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज कैपिटल गुड्स विल बी रिगार्डेड एज कैपिटल गुड्स. तो मेरे हिसाब से इसका स्कोप काफी बढ़ा दिया है. नाउ बिसाइड्स दिस देयर आर सर्टेनली मेनी अदर चेंजेस आल्सो इन द डेफिनेशन सेक्शन 2 ऑफ द रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ. But I don't think that this is the right time to discuss all those provisions because we will be discussing everything in detail. We will be doing the threadbare analysis for each and every provision which is going to be relevant under GST. लेकिन तीन टर्म्स, तीन डेफिनेशंस ऐसी हैं जो मैं 100% टच अपॉन करना चाहूंगा और वो तीन टर्म्स हैं जिनको मैं कवर करना चाहूंगा. पहला टर्म है प्रिंसिपल सप्लाई, दूसरा टर्म है कंपोजिट सप्लाई एंड तीसरा टर्म है मिक्स सप्लाई. These three terms are inserted in the revised model GST law and the effect of this is also as per subsection 5 of section 3, that is the definition of supply. जब हम सप्लाई का डेफिनेशन करेंगे तब वो टर्म जरूर समझेंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज दीज टर्म्स मीन्स. सबसे पहले लेते हैं कंपोजिट सप्लाई. So in spite of going into the details and the definitions, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं सर कि जब हम मार्केट में टीवी परचेस करने जाते हैं तो उसके साथ में आपको रिमोट मिलता है. वो दोनों ही चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. सो वेन एवर यू आर सप्लाइंग टू आइटम्स वेर इन बोथ आइटम्स और ईच ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर, then such supply can be termed as composite supply. सिंपल सी लैंग्वेज में
तो वो कंपोजिट सप्लाई हो जाती है सर। एक का डोमिनेंट नेचर होता है और दूसरा जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे डोमिनेंट नेचर हो गया टेलीविजन का और रिमोट जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सो इट बिकम्स अ कंपोजिट सप्लाई। और जिस चीज का डोमिनेंट नेचर होता है इट बिकम्स द प्रिंसिपल सप्लाई। सो नाउ टू टर्म्स आई बिलीव आर क्लियर। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, जहां पे कुछ ऐसी आइटम्स आप सप्लाई करते हैं जो एक से ज्यादा हैं और वो आइटम्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, देन इट बिकम्स अ कंपोजिट सप्लाई। और वो जो भी सप्लाईज हैं उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है वो होता है जिसका डोमिनेंट नेचर होता है, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के हैं और वो एक आइटम डोमिनेंट नेचर का है। सो इट बिकम्स अ प्रिंसिपल सप्लाई। एंड नाउ लेट अस टच अपॉन व्हाट इज मिक्स सप्लाई। तो साहब मिक्स सप्लाई ये है कि आपने अगर ड्राई फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स भी सप्लाई किए हैं एक पैकेज में, एक बॉक्स में, ड्राई फ्रूट्स के साथ आपने चॉकलेट सप्लाई किए हैं एक ही बॉक्स में, सो दिस सप्लाई कैन बी टर्म्ड एज मिक्स्ड सप्लाई, जहां पे एक दूसरे को कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, सबका इंडिपेंडेंट यूजेज है। पहले एग्जांपल में क्या था सर, टीवी और रिमोट, रिमोट के बिना टीवी नहीं चले या दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। लेकिन यहाँ पे ड्राई फ्रूट और चॉकलेट दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटस रखते हैं, दोनों का इंडिपेंडेंट वैल्यू है। उसको जब आप एक साथ सप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स अ मिक्स सप्लाई। और जब हम सप्लाई की डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 3 में, सब सेक्शन 5 में इसको इंसर्ट किया गया है, तो वहां पे यही बोला है कि जहां पे कंपोजिट सप्लाई की बात करते हैं वहां पे जो रेट होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होगा, डोमिनेंट नेचर की जो सप्लाई है। और जब मिक्स सप्लाई है वहां पे जो आपने आइटम सप्लाई की है उसमें से ऐसी आइटम जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वो लगाया जाएगा। तो साहब मैं बिलीव करता हूं कि नाउ ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हैं और बाकी ये तीनों टर्म्स और बाकी के प्रोविजंस विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन द सेशंस टू कम इन दिस नॉलेज सीरीज। नाउ लेट अस मूव अहेड। इसके अलावा एज यू ऑल नो नाउ दैट द एंटायर GST revolves around one term and that term is supply. I'm repeating, the entire GST law revolves over one term which is the most relevant and crucial term, and that term is supply. It has been defined in section 3. बहुत सारे सजेशंस हम लोगों ने भेजे थे क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, and the biggest problem was that it has been taken as an inclusive definition under GST. But under revised model GST law also nothing has been changed much. There is one change, and which is clause B of subsection 1 of section 3, जहाँ पे importation of service की बात करते हैं। पहले क्या था, रिवाइज मॉडल GST लॉ से पहले ओरिजिनल मॉडल GST लॉ में प्रोविजन कुछ ऐसा था कि जहां भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, वेदर इट इज फॉर कंसिडरेशन और नॉट, वेदर इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। दैट मीन्स इट विल बी इंक्लूडेड एंड टर्म्ड एज सप्लाई इफ यू आर importing any service, even if that service is without consideration and even if that service is in course or furtherance of business or not, तो भी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहा था। Now in the revised model GST law there has been changes made to it and it is now as importation of service for consideration in course or furtherance of business. It means what, कि अब consideration compulsory है। कोई भी सर्विस अगर आप इंपोर्ट करते हैं और वो कंसिडरेशन रखता है तो वो भले ही आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई, एंड इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। सो दिस इज वन थिंग जो मैं आपको सप्लाई की डेफिनेशन में बता रहा था। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर ऑलमोस्ट सेम इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3 विच वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद, कि प्रिंसिपल सप्लाई के केस में जहाँ पे कंपोजिट सप्लाई है वहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, जब मिक्स सप्लाई है वहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ये दिस वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। नाउ लेट अस मूव to another section which was section 8 originally and now it is section 9, composition levy. We all know about the composition levy.
बहुत अच्छा एक चेंज ये किया है मॉडल जीएसटी लॉ में और रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ में कि सब कंपोजिशन लेवी में इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. इट हैज बीन कैटेगरीली मेंशन. और जो चीज उनको करनी चाहिए थी और नहीं की है वो है टर्नओवर. वी हैव सजेस्टेड, most of the persons have suggested that the turnover which is kept as 50 lakhs as a cap for being into the composition scheme should be increased to 1 crore or 2 crores. That has not been done. रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ में भी वो टर्नओवर का जो लिमिट है वो 50 लाख ही है. यानी 50 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर रहेगा तो आप कंपोजिशन लेवी में नहीं जा सकते. 50 लाख से नीचे रहेगा तो ही आप कंपोजिशन लेवी में जा सकते हैं. रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर ऑलमोस्ट सेम except one which has been now clarified beautifully, and it says categorically specifically that if there is a case of supply of service, composition levy will not be allowed to you. You will not be covered under the composition levy. You will not be eligible to get yourself covered or registered under the composition levy if you are supplying services. That means only in case of supply of goods composition levy is applicable. तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ क्लैरिफाई हो गई है रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ में. बाकी जब हम प्रोविजंस को डिटेल में टच अपॉन करेंगे देन वी विल डिस्कस कंपोजिशन लेवी एंड ऑल द कंडीशंस एक्सेट्रा रिलेटिंग टू द सेम. देन अनदर वेरी गुड चेंज और आई वुड से सिंप्लीफिकेशन हैज बीन डन इन सेक्शन 12 विच डील्स विद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. अगर आपको ध्यान होगा सर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में पहले 4 डेट्स हुआ करती थी. चारों में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगी that date was supposed to be the time of supply of goods. वो dates क्या थी सर? 4. सबसे पहले date of receipt of goods, sorry, date of supply of goods. दूसरी date of receipt of payment. तीसरी date of issuance of invoice. और चौथी date on which it has been recorded in the books of the recipient. ये 4 में से तो जो चौथी कंडीशन थी it was very critical कि when it is going to happen. So a lot of confusions were there and now it has been very much simplified and it is now cut off into 2 dates only. 4 में से केवल 2 डेट कर दिए सर. वो 2 डेट्स क्या है? अर्लीस्ट ऑफ द 2 डेट्स विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. फर्स्ट डेट इज डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस वाज सपोज टू बी इशूड. इट मीन्स या तो आपने इनवॉइस इशू कर दिया है तो डेट ऑफ इनवॉइस, अगर इनवॉइस इशू नहीं किया है तो लास्ट डेट जिस दिन वो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वो डेट, दोनों में से कोई एक डेट आएगी. और दूसरी डेट है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो अगर आपने इनवॉइस बना दिया है 25 दिसंबर को और पेमेंट आपको 20 दिसंबर को मिल गया है तो 20 दिसंबर. अगर आपने इनवॉइस नहीं बनाया है और रूल्स बोलते हैं कि आपको इनवॉइस 30 दिन के अंदर बना देना है और आपने सप्लाई 25 नवंबर को कर दिया था तो आपको इनवॉइस 25 दिसंबर तक बना देना था. अगर आपने नहीं बनाया तो लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस वाज सपोज टू बी इशूड वाज 25th of December. दैट डेट और द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. So these are the 2 dates which are to be considered now for the determination of time of supply of goods. तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया साहब. इसमें एक ये चेंज हुआ है और दूसरा एक चेंज और हुआ है कि अब सब सेक्शन एक इंसर्ट कर दिया गया है एंड दैट हैज बीन सेड एज सप्लाई ऑफ वाउचर्स. जो रिडम्पशन वाउचर्स होते हैं ना, वो रिडम्पशन वाउचर्स जब आपको दिए जाए, आजकल बहुत चलता है ऑनलाइन ट्रेडिंग और इन सब चीज़ों में, तो रिडम्पशन वाउचर्स को भी सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर डिफाइन किया गया है. और ऐसा बोला गया है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली तो जिस दिन जब आपने वो वाउचर दिए दैट विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. लेकिन अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है सप्लाई ऑफ वाउचर्स देन द डेट ऑन विच इट इज गेटिंग रिडीम्ड, जिस दिन आप वो वाउचर को भुगता रहे हो, कैश कर रहे हो, उस दिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा. And rest, my dear friends, as we have discussed that we will be discussing all these provisions again and in detail with several examples. So if there is any confusion still, we will be clarifying it and we will be coming out with the best understanding possible. Now further moving ahead, एक और चीज जो रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ और ओरिजिनल मॉडल जीएसटी लॉ में फर्क आया
दैट वाज पर्टेनिंग टू रजिस्ट्रेशन। और वो मेजर चेंज क्या था रजिस्ट्रेशन में? लायबिलिटी टू गेट रजिस्टर्ड एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इट वाज अर्लियर इन शेड्यूल 3, नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू शेड्यूल 4। Rest of the provisions are same. No change in the provisions of registration. And even on 29th of September 2016, they have come out with draft rules and formats also. And now recently, they have come out with the preview of return and registration. And we can go through those return formats, how that will look under the GST regime. And before that, the enrollment process has already been started, or most of the states have already done the enrollment or migration from for the VAT registrant। जिनका भी VAT में रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुके हैं, और जो सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है वो 1 जनवरी से माइग्रेट होंगे GST पोर्टल पे। सो दिस इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। नाउ सेटलमेंट ऑफ केसेस। सो टू माई सरप्राइज द एंटायर चैप्टर पर्टेनिंग टू सेटलमेंट ऑफ केसेस हैज बीन डिलीटेड। जो ओरिजिनल मॉडल जीएसटी लॉ में सेटलमेंट ऑफ केस था आईजीएसटी एक्ट में और सीजीएसटी एक्ट में उसका रेफरेंस था, आई एम नॉट फाइंडिंग दैट सेटलमेंट ऑफ केस अंडर द रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सेटलमेंट ऑफ केसेस विल कम थ्रू रूल्स, और मे बी इन द फाइनल बिल और फाइनल ड्राफ्ट इट विल कम, because it has to be there. Then another change which I have noted, and it is going to be very crucial, is they have simplified, or I would say they have diluted the effect or gravity of section 53 which was in original model GST law. सेक्शन 53 पहले क्या था सर, कि अगर आपने प्लेस ऑफ सप्लाई को गलत डिटरमाइन किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ समथिंग विच इज एक्चुअली इंटर स्टेट सप्लाई इज टेकन और कंसिडर्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो आपने यहाँ से कहीं दूसरी जगह माल भेजा और आपने कंसिडर कर लिया कि भैया ये इंटर स्टेट सप्लाई है, लेकिन एक्चुअली वो इंट्रा स्टेट सप्लाई था, या एक्चुअली वो इंटर स्टेट है और आपने इंट्रा स्टेट ट्रीट कर लिया, तो ये दोनों ही सिचुएशन में आपने कलेक्ट किया होगा गलत टैक्स। एक एग्जांपल लेते हैं सर, अगर मैंने यहाँ से कोई गुड सप्लाई की है और ये अज्यूम कर लिया कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो मैं क्या कलेक्ट करूँगा? CGST और SGST। तो मैंने CGST और SGST कलेक्ट किया और उसको भर दिया। I have never not defaulted. My intention was not to evade tax. But हुआ क्या, जब असेसमेंट होने लगा, then the officer said that it is not intra-state because of the provisions of place of supply rules or place of supply provisions which is there in the IGST Act section 7, 8, 9, 10. उसके प्रोविजंस के हिसाब से ये इंट्रा स्टेट नहीं है सर, ये इंटर स्टेट है। So what will happen in this case? I should have collected IGST instead of CGST, SGST. तो मेरा जो कलेक्शन किया और भरा वो गलत हो गया। तो सेक्शन 53 ओरिजिनली क्या प्रोवाइड करता था कि भैया अगर आपने गलत टैक्स कलेक्ट कर लिया तो आपको सही टैक्स भरना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और गलत टैक्स को आपको रिफंड लेना पड़ेगा। वो सेक्शन जो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, और उसका जो ये इफेक्ट है उसका थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, उसकी ग्रेविटी को सेक्शन 70 के रूप में, विच वॉज अर्लियर और ओरिजिनली सेक्शन 53. So we'll deal with this also in detail at the time of discussion of the provisions in the sessions to come. Now further one very important section has been inserted which is going to affect all of us, that is section 163 which deals with the anti-profiteering measure. ये बहुत, मैं ऐसा बोलूँगा कि this is one of the dangerous provisions which have been inserted in the revised model GST law, and lot of associations have now recommended and requested to remove this provision. And what is anti-profiteering? As the name itself suggests, anti-profiteering नाम से ही पता चलता है जो प्रॉफिट के एंटी हो. So it means if you are getting any benefit because of the GST being implemented, if you are getting any benefit because of the GST being implemented, maybe in the form of credit, जो क्रेडिट आपको नहीं मिलता था वो क्रेडिट अगर आपको GST रिजाइम में मिलता है, तो वो जो भी क्रेडिट मिल रहा है या जो भी एडिशनल प्रॉफिट आपको मिल रहा है, यू विल हैव टू पास ऑन दैट क्रेडिट और दैट प्रॉफिट टू योर कस्टमर्स. यू विल हैव टू पास ऑन दैट. अगर आप वो पास ऑन नहीं करते हैं तो आप एंटी प्रॉफिटिंग में कवर हो जाते हैं, एंड यू विल हैव टू पे एंड फेस द पेनल प्रोविजंस. सिंपल एग्जांपल में समझे तो अगर आपको 10 रुपये का क्रेडिट पहले नहीं मिलता था तो आपकी कॉस्टिंग 10 रुपये से ज़्यादा थी, और आप उसको 120 रुपये में सेल करते थे 100 रुपये की चीज़ को.
अब वो 10 रुपये का आपको क्रेडिट मिलता है तो आपकी कॉस्टिंग हो गई 90 रुपये, और अभी भी आप अगर 120 रुपये में बेचते हैं तो इट मीन्स यू हैव नॉट पास्ड ऑन दैट 10 रुपीज़ एडिशनल प्रॉफिट टू योर कस्टमर्स। तो अभी आपका प्रॉफिट हो गया 120 माइनस 90, दैट इज 30 रुपीज़। तो ये नहीं हो सकता। एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर सेक्शन सेज दैट इट हैज़ टू बी 20 रुपीज़ ओनली। और 10 रुपये का जो आपको एडिशनल क्रेडिट मिला है बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविजंस ऑफ जीएसटी, यू विल हैव टू पास ऑन दैट क्रेडिट, दैट एक्स्ट्रा मार्जिन टू योर कस्टमर। इसका मतलब आप अपनी सेल प्राइस को कम कर दें, 110 रुपये कर दें, ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो पहले जितना ही रहे। Because of the additional margin or additional credit given to you under the GST regime, you cannot gain higher profit. That is anti-profiteering measure. So this is going to be one of the crucial things, and it is going to impact each one of us. So lot of requests have been made, but let me tell you very frankly, I think this is not going to be removed. It is already there इन द मलेशियन जीएसटी ऑल्सो। मलेशिया के अंदर भी जो जीएसटी है उसके अंदर भी एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर इज देयर। सो विल नॉट डिस्कस इन डिटेल नाउ। जब हम एंटी प्रॉफिटरिंग का प्रोविजन डिस्कस करेंगे, आई विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ दिस एंड द एंटायर प्रोविजन पर्टेनिंग टू इट। तो सब ये कुछ सेक्शंस थे जो मैं समझता था कि बहुत ही रेलेवेंट हैं और पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स है। ओरिजिनल मॉडल जीएसटी लॉ में जिस तरीके से प्रपोजिशंस हुए थे, और हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सजेशंस भेजे, सीए इंस्टीट्यूट ने सजेशंस भेजे, बहुत सारी बॉडीज़ ने सजेशन भेजे, फिकी ने सजेशंस भेजे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो सजेशंस दे हैव टेकन केयर ऑफ सर्टेन सजेशंस एंड देन दे हैव कम आउट विद द रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ। तो रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने की सजेशंस के बेसिस पे जो अच्छी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी उन्होंने नहीं की। लेकिन व्हाट वी आर हियरिंग इज दैट इन द meetings of the GST Council, CGST, SGST Act, or rather CGST Act has been cleared, except few provisions which are dealing with the dual control part. और IGST और जो compensation bill है, that is to be discussed in the meeting which will be there on 3rd and 4th of January 2016. 17 sorry, 16 चला गया साहब, अब 2017 जनवरी की बात कर रहे हैं। Now besides this, the normal question which I am facing with everyone is whether GST is going to come from 1st April 2017. I am no one to answer this question, to be very honest. But from day one, we had the belief that GST will not come from 1st April 2017. And still that belief is on. Rest the time is going to say कि GST 1 अप्रैल से आएगा, 1 जुलाई से आएगा, या 1 सितंबर से आएगा, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट जीएसटी इज गोइंग टू कम। सो दिस वाज एन ओवरव्यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड स्टार्ट ऑफ न्यू सीरीज, स्टार्ट ऑफ न्यू थॉट प्रोसेस, स्टार्ट ऑफ व्हाट आई कैन से, नया कोशिश आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का और अपनी नॉलेज, अपने व्यूज़ और अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करने का। ये एक नया नॉलेज सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब तक आप ये रिवाइज्ड मॉडल जीएसटी लॉ का नॉलेज सीरीज स्टार्ट करके ख़त्म करने की तरफ जाएंगे तब तक फाइनल बिल और ड्राफ्ट आ जाएगा। तो नो मैटर, चेंज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड इट इज़ सर्टेनली गोइंग टू कम, सो वी कैनॉट वेट फॉर दैट। सो इसलिए मैंने सोचा कि बेटर इट इज़ कि लेट अस स्टार्ट विद द नॉलेज सीरीज रिवाइज ऑन द मॉडल, ऑन द रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ, और जब फाइनल बिल या ड्राफ्ट्स आएंगे तब हम उसके ऊपर भी नॉलेज सीरीज चालू कर देंगे। सो दिस इज माई बिलीफ एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल विल लाइक द रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ नॉलेज सीरीज विच इज गोइंग टू कम in the coming days, and we'll be touching upon most of the provisions pertaining to the revised model GST law. With this, I would like to thank each one of you for giving me this opportunity again, for giving me patience hearing and the motivation to once again come forward and record the video lectures for the benefit of trade industry professionals and everyone at large. And not only this, this becomes a challenge for me also to get clarity of thoughts before speaking anything,
and before deliberating on any particular provision. So thank you very much.